So good evening dear learners. Today we are here to understand the concepts of trigonometric identities and the basic results which are required to solve the problems based on trigonometric identities. So first of all, before I start with this lecture, begin with this lecture, मैं basic line of action आपको पहले explain कर देता हूँ that how this lecture session will go on and along with the various lecture sessions which are coming in the further future. So बेसिकली हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? वील स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, द इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड ओवर एंड ओवर अगेन फॉर अंडरस्टैंडिंग द यूज ऑफ आइडेंटिटीज, हाउ टू अप्लाई देम, कहाँ कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई होगा वो तो धीरे धीरे वील अंडरस्टैंड बाय डिस्कसिंग द वेरियस प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जो फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे या फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस लेक्चर जो मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ उसमें बेसिकली आई विल बी डिस्कसिंग the trigonometric identities from the scratch, starting from the scratch. तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो अपन स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को एक बेसिक आइडिया तो होगा ही ट्रिग्नोमेट्री का, इफ यू आर हियर टू अंडरस्टैंड एंड लर्न द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. तो उन्हीं कुछ बेसिक पॉइंट्स को मैं एक बार रिकॉल करा के आपको फेमिलियर कराता हूँ टू ऑल दोज बेसिक और वेरियस फंडामेंटल आइडेंटिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द चाइल्ड. तो फर्स्ट पॉइंट में मैं वही बेसिक्स लेकर के चल रहा हूँ, द डेफिनेशन ऑफ वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. फंक्शंस बोलना क्लास 10th के लिए विल नॉट बी वेरी ऑथेंटिक, बट फॉर क्लास स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 जो कि ये बेसिक लेक्चर देखना चाह रहे हैं, फॉर देम आल्सो दिस इज अ वेरी क्रूशियल लेक्चर कि उनके बेसिक्स इस लेक्चर से क्लियर हो जाएंगे. दे विल फिल्टर आउट ऑल देयर डाउट्स जो कुछ भी उनके मन में मिसकंसेप्शंस डेवलप. So first of all, we will draw this table जो basically define करता है various trigonometric ratios. So basically trigonometry is based on study of a triangle and study of a triangle में भी most commonly हम बोलते हैं right triangle. But you must understand कि right triangle की study के लिए ही सिर्फ confined नहीं होता trigonometry. Trigonometry can be used to study a triangle which is not right angled in nature. Class 11th और class 12th का जो JEE aspirant होता है, that child or that person understands जो मैं statement यहाँ पे दे रहा हूँ, that trigonometry is not only based on the study of right triangle only, but it is based on study of all types of various types of triangles. Now, for student of class 10 या for the basics of trigonometry, we will understand that basically हम right triangle के respect में बात करते हैं. तो right triangle के respect में we will talk. So there are three sides of a right angle triangle and the three sides of the right angle triangles are what? Hypotenuse, perpendicular and base. अच्छा, इसमें भी एक segment है that how to identify the perpendicular and the base. वो मैं यहाँ short में फटाफट निपटा रहा हूँ. If this is the main angle, then the side on which this angle is made other than the hypotenuse is known as the base. Repeat करूँगा फिर से. The side on which the angle is made other than the hypotenuse is known as the base, and the side which is opposite to the prime angle of the given angle is known as the perpendicular. This is the way to identify perpendicular and base. तो इसका मतलब क्या है? If this theta will change, theta change होने की वजह से perpendicular and base की orientation will also reverse. क्योंकि if this will be the prime angle, this will become the perpendicular because vertically opposite ये होगा and the side on which the angle is made will be the base. Now coming to this table, this is PBB and HHB. अब आप सोच रहे होंगे कि PBB and HHB क्या है? It is nothing but perpendicular, base and hypotenuse. P for perpendicular, B for base and H for hypotenuse. Now how to read this table? Sin theta is read or defined as perpendicular upon hypotenuse. Cos theta is defined as base by hypotenuse. Tan theta is defined as perpendicular by base. Next, cosec theta is read as hypotenuse by perpendicular. Sec theta is read as hypotenuse by base. And cot theta is read as B by P. So this is one of the basic requirement to understand the trigonometric identities, various trigonometric identities. Now, I would like to go to the point number second. Point number second में आपको क्या समझ में आना चाहिए? That if sin theta is equal to P by H and cosec theta is equal to H by P,
तो अगर हम फ्रैक्शन के टर्म्स के अकॉर्डिंग देखें तो वी विल फाइंड आउट दैट p by h and h by p are multiplicative inverse of each other or reciprocal of each other. So इससे हमें एक important result मिलता है that sin theta and cosec theta are multiplicative inverse or reciprocal of each other. That means we can write sin theta can be expressed as 1 by cosec theta and cosec theta can be expressed as 1 by sin theta. In the similar pattern, we can also figure out that cos theta and sec theta are again inverse of each other, multiplicative inverse of each other, which will ultimately translate to cos theta is equal to 1 by sec theta, or other way around we can write sec theta is equal to what? 1 by cos theta. Similarly, we can go with tan and cot also. But tan theta and cot theta are nothing but inverse of each other. And which inverse? Multiplicative inverse. क्योंकि inverse बहुत टाइप के होते हैं, additive inverse भी होता है, additive inverse based on a various operation, defined operation. तो it is a very long story. अगर अपन higher level पे higher mathematics में enter करने की कोशिश करेंगे तो tan and cot are again inverse of each other because tan is p by b and cot is b by p. So tan is nothing but 1 by cot and cot is nothing but 1 by tan in terms of reciprocal ratios. Now these six results, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5 and number 6 are very basic but a very necessary transformation. क्योंकि कब कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन वी विल बी यूजिंग इन प्रूविंग अ सर्टेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दैट डिपेंड्स इन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम और इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ द आइडेंटिटी. नाउ पॉइंट नंबर 3 पे डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं. पॉइंट नंबर 3 इज बेस्ड ऑन tan, sin and cos in the first segment and the second segment will be based on cot, cos and sin again. So third segment I am giving the heading relation between tan, sin and cos. ये फर्स्ट सेक्शन हो जाएगा, फर्स्ट सेगमेंट हो जाएगा एंड द सेकंड वन विल बी cot, cos and sin. So क्या रिलेशन बनेगा? See, ultimately मैं डायरेक्टली रिजल्ट पे जा रहा हूं. I am not going into the proof of this that tan theta can be written as sin by cos, but verbally we can discuss that if we divide p by h upon b by h, h and h will cancel and p by b will be left. p by b ultimately क्या बन जाएगा? tan theta. So tan theta can be written as sin by cos, very important result. And cot and cos and sin इनके बीच में क्या रिलेशन बनेगा? that cot theta will be equal to cos theta divided by sin theta. This is also a very crucial result क्योंकि जब हम प्रॉब्लम्स स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम्स का डिस्कशन शुरू होगा तो यू विल फिगर आउट दैट in 90 to 95% problems of the trigonometric identities of proving the trigonometric identities we will find that कि अगर प्रॉब्लम को sin cos के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते तो इट इज वेरी इजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. नाउ नेक्स्ट पार्ट, पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉइंट नंबर 4 एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए. बट इन ऑर्डर टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड कुछ पुराने लॉजिक्स ब्रश अप करने की वजह से मैंने पॉइंट नंबर 1 2 3 यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं. पॉइंट नंबर 4 इज नथिंग बट द मेन आइडेंटिटी नंबर 1. मेन आइडेंटिटी नंबर 1 and main identity number 1 is nothing but sin square theta plus cos square theta is equal to 1. ये हमारी मेन आइडेंटिटी है, वेरी इंपॉर्टेंट. इसका प्रूफ कभी फ्री टाइम में आई विल रिकॉर्ड दिस लेक्चर एंड लेट यू पीपल नो कि ये प्रूफ कैसे होता है. हालांकि प्रूफ रिक्वायर्ड है नहीं. मेन आइडेंटिटी नंबर 1, you must also remember and also understand that main identity number 1 is also known as the fundamental identity. Fundamental identity. This is the fundamental identity. इसके बाद जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमको देखने को मिलेंगे
all those trigonometric identities will be derived identities, क्योंकि इसकी हेल्प से बाकी सब बनता है. Now remember this is a very important result. मेन आइडेंटिटी तो यही है, लेकिन इसके कुछ सब फॉर्मेट्स भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ. One must memorize each and every सब फॉर्मेट ऑफ दिस गिवन आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्रूशल हो जाएगा थोड़ा सा. सो वी कैन गेट सब फॉर्मेट्स. व्हाट आर दी सब फॉर्मेट्स? द सब फॉर्मेट्स आर that sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. One result, direct result याद रखना है. Cos square theta can be written as 1 minus sin square theta. Next result which you must remember, that sin theta can directly be written as 1 minus cos square theta. And also cos theta can be written as under root 1 minus sin square theta. अच्छा, आप में से कुछ लर्नर्स ऐसे जरूर होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जरूर होंगे जिनके मन में ये डाउट आना चाहिए, आ भी रहा होगा कि सर आपने अगर स्क्वायर रूट किया तो यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं लगा. वी हैव टू अप्लाई प्लस माइनस, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10. अगर अपन क्लास 11th या 12th के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो प्लस माइनस वहां लगता है, बट वी हैव टू डिसाइड कि सिर्फ प्लस लेके चलना है या माइनस. दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी टू बी डिस्कस्ड इन सम अदर लेक्चर व्हिच इज डायरेक्टली रिलेटेड और कन्फाइंड टू क्लास 11. Now after main identity number 1, point number 5, this is main identity second, and main identity second fundamental नहीं है, that is a derived identity. This is derived identity, and derived identity कौन सी है? Let us figure it out. This derived identity is nothing but sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. This is the second derived identity. अब इसके भी सब फॉर्मेट्स बनेंगे, जैसे sin square theta plus cos square theta के सब फॉर्मेट बने थे. So सब फॉर्मेट्स are just like the previous one. Part number A, we can easily write sec square theta minus 1 is equal to tan square theta. Result to be learned by heart. Another format, sec square theta minus tan square theta is equal to plus 1. Important and easy result. लेकिन अब पॉइंट नंबर सी जो है, दैट इज अ बिट इम्पोर्टेंट. कैसे? इसी आइडेंटिटी में वी अप्लाई a minus b into a plus b for a square minus b square, so we will get sec minus tan into sec plus tan is equal to कितना? 1. इससे दो सेक्शंस बना सकते हैं, तो मैं एक ही सेक्शन बना रहा हूँ, एक में आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी पे छोड़ रहा हूँ. दैट वी कैन राइट sec theta minus tan theta is equal to 1 by sec plus tan. तो अब इस रिजल्ट में ऐसी खास बात क्या हो गई? तो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट इज दैट द इनवर्स ऑफ sec minus tan is sec plus tan. The inverse or multiplicative inverse or the reciprocal of sec minus tan is sec plus tan. ये हमको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, because this is a very important result. कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इस रिजल्ट के बिना करना इम्पॉसिबल है. If you are unaware about this result, so those questions cannot be dealt with and cannot be evaluated further. तो क्या इंपॉर्टेंट नोट बनेगा? इंपॉर्टेंट नोट बनेगा दैट sec minus tan theta and sec plus tan theta are inverse of each other. Are inverse of each other. ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट पर बेस्ड प्रॉब्लम्स कौन से हैं जहां पे डायरेक्टली ये रिजल्ट इस्तेमाल होगा? वी विल डू दोस प्रॉब्लम्स, तो आप अंडरस्टैंड करोगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन. नाउ आई एम टेकिंग द लास्ट आइडेंटिटी फॉर टुडे या फॉर दिस सेक्शन और फॉर दिस सेगमेंट. दैट लास्ट आइडेंटिटी इज मेन आइडेंटिटी नंबर 3. बट जो मेन आइडेंटिटी नंबर 3 उसमें बहुत ज्यादा इलैबोरेट करने को कुछ है नहीं. व्हाई? Because this main identity number 3 is just a parallel segment to the identity number 2. So this identity is cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. ये हमारा मेन आइडेंटिटी नंबर 3 आ गया. अगेन इससे भी कुछ सब रिजल्ट्स बनेंगे, कुछ सब फॉर्मेट्स बनेंगे. दैट विल बी as it is just like the fifth one.
सब फॉर्मेट नंबर 1 क्या बन रहा है? सब फॉर्मेट नंबर 1 इज cosec square theta minus 1 can be written as cot square theta. Second part will be cosec square theta minus cot square theta is equal to plus 1. C part will be a square minus b square applied in the b section, that is cosec theta plus cot theta multiplied by cosec minus cot is equal to plus 1. तो इससे फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा? द फाइनल रिजल्ट विल बी, एंड बाय दिस वी कैन राइट दैट cosec minus cot can be expressed as 1 by cosec plus cot, और अल्टीमेटली एंड रिजल्ट इसका भी क्या आएगा? वही सेम, दैट cosec minus cot and cosec plus cot are multiplicative inverse of each other. Are multiplicative inverse of each other. So basically ये जितना कुछ अभी आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, you can copy this down, you can take the screenshot of this, इसको स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना के प्रिंट करवा सकते हैं, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, इसके नोट्स बना लीजिए. बट दिस कंप्लीट सेक्शन व्हिच इज प्रेजेंट इन द बोर्ड राइट नाउ इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. अगर आपने इतना पूरा सेक्शन बहुत अच्छे से किया हुआ, अच्छा इतने पूरे सेक्शन में भी इफ वी इग्नोर पॉइंट नंबर 1 तो भी चलेगा. वी स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 से लेकर के टिल पॉइंट नंबर 6. इफ यू हैव मेमोराइज इट बाय हार्ट, बाय अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, सिर्फ याद बस नहीं करना, अंडरस्टैंडिंग भी उसकी थोड़ी सी रखनी पड़ेगी आपको. देन इन दैट केस यू आर फुली प्रिपेयर्ड टू फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. बिकॉज प्रॉब्लम्स इजी तो चलिए ठीक है, दोज आर वेरी इजी प्रॉब्लम्स. द विच वन आर वेरी इजी प्रॉब्लम कैन बी डेल्ट वेरी इजी वे इन अ वेरी इजी मैनर. बट जो थोड़े से डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं, लेंथी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें एक ही प्रॉब्लम में 6 बार 7 बार 8 बार आइडेंटिटी के वेरियस फॉर्मेट्स इस्तेमाल होते हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द बोर्ड. तो जब तक वो अच्छे से याद नहीं होगा समझ के, तब तक वी विल बी नॉट बी एबल टू अप्लाई दोज फॉर्मूले, दोज ट्रांसफॉर्मेशंस इफेक्टिवली. सो इस सेगमेंट में मैं इतना ही रख रहा हूँ. देन द नेक्स्ट सेगमेंट विच विल बी स्टार्टिंग इन सम टाइम, अपन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्ट करेंगे. एंड बेसिकली दिस लेक्चर इज अ टाइप ऑफ रिवीजन लेक्चर. जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पहले से पढ़ी हुई है एंड दे वांट कि दे हैव टू ब्रश अप द कॉन्सेप्ट, एक बार फिर से सारे क्वेश्चंस देखना है, कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्लियर बनाना है. दिस लेक्चर इज बेसिकली कंसर्न्ड एंड कन्फाइंड टू दैट इंक्लाइंड डोमेन. ठीक है, सिर्फ रिवीजन सेक्शन के हिसाब से आई एम प्रिपेयरिंग दिस लेक्चर. ऑल्दो इस लेक्चर में मैं काफी प्रॉब्लम्स कवर अप करने वाला हूँ, जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट विल बी वेरी क्लियर टू यू. सो वील कैरी ऑन आफ्टर सम टाइम. सो हेलो एवरीवन, एंड टुडे मैंने प्रीवियस सेगमेंट में या प्रीवियस लेक्चर में वट एवर इट इज़ द वे यू आर लुकिंग टुवर्ड्स दिस लेक्चर, तो सेगमेंट में मैंने आप लोगों को बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के मेन फॉर्म्स, देयर सब फॉर्मेट्स एंड all those results which are necessary and required for solving problems which are related to trigonometric identities मैंने आप लोगों को बता दिए थे, कवर अप करवा दिए थे. एंड आप लोगों से ये एक्सपेक्ट भी किया हुआ है मैंने पहले से कि यू मस्ट लर्न ऑल दोज आइडेंटिटीज, ऑल दोज फॉर्म्स, ऑल दोज फॉर्मेट्स, ऑल दोज फॉर्मुलेशंस, ऑल दोज ट्रांसफॉर्मेशंस बाय हार्ट एंड ऑल्सो बाय अ बिट अ सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. बिकॉज अब हम इनके प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं, तो प्रॉब्लम्स को मैं 3 या 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा हूँ. सेगमेंट नंबर 1 इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ अ सर्टेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप एनसीईआरटी प्रेफर करेंगे और एनसीईआरटी से गो थ्रू करेंगे, तो यू विल फाइंड दैट इन एक्सरसाइज 8.3 ऑफ द न्यू बुक एंड फॉर द ओल्ड बुक, पीपल हु हैव ओल्ड एनसीईआरटी, एक्सरसाइज 8.4 दोनों ही एक्सरसाइजेस के, चाहे 8.3 ऑफ द न्यू बुक की बात कर लें एंड फॉर 8.4 ऑफ द ओल्ड बुक, इफ वी आर कंसर्न्ड ऑफ
तो उसमें जो प्रॉब्लम नंबर 1 एंड 2 दिया हुआ है, दैट राइट साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए टेन ए कोजे के समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, तो वो वाला सेगमेंट मैं कवर करूँगा पार्ट नंबर 1 में. देन पार्ट नंबर 2 विल बी बेस्ड ऑन लेवल 1 एंड लेवल 2 प्रॉब्लम्स. देन पार्ट नंबर 3 मैंने प्लान आउट किया हुआ है, दोज विल बी बेस्ड ऑन लेवल 3 प्रॉब्लम्स. एंड पार्ट 4 जो मैंने प्लान कर रखा है, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन कंडीशनल आइडेंटिटीज और कंडीशनल प्रॉब्लम्स. मतलब अपन को एक वैल्यू गिवन होगी दैट so and so quantity is equal to m, so and so quantity is equal to n, then prove that m square n to the power 2 by 3 plus n square n to the power 2 by 3 is equal to 2, etc etc etc. तो बेसिकली इन 4 सेगमेंट्स में अलॉन्ग विद द 5th सेगमेंट कौन सा, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया हुआ है, ऑल दोज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड देयर सब फॉर्मेट, अगर आप इतना कवर अप कर लेते हो तो आई डोंट थिंक कि कोई भी डोमेन बच रहा है इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको प्रॉब्लम करेगा या ट्रबल अप करेगा. सो बेसिकली मैं आज सेगमेंट नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ. सेगमेंट नंबर 1 कौन सा था, जिसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड देयर सब फॉर्मेट्स बताए हुए. सेगमेंट नंबर 2 आई एम स्टार्टिंग, एंड बिफोर स्टार्टिंग सेगमेंट नंबर 2 आई वुड लाइक टू मेंशन कि इसी लेक्चर में आफ्टर द कंप्लीशन यू विल सी दैट आफ्टर द कंप्लीशन तो ठीक है, बट मैं अभी भी प्रेजेंटली एक क्लिप आपको दिखा देता हूँ. एक फोटोग्राफ मेरे पास अवेलेबल है, एक टैबुलर फॉर्मेट अवेलेबल है जिसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में लिख करके दिखाया हुआ है. सो दैट टेबल इज़ बीइंग डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. आप इसको एक बार देख लो, अगर लगता है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो. स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, बनाना चाह रहे हो तो उसको वीडियो को पॉज करके अभी बना लो. एंड इफ़ यू आर केपेबल ऑफ लर्निंग दिस टेबल तो वो बहुत अच्छा होगा, बट जनरली मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप लर्न करो, लेकिन येस आपको ट्रांसफॉर्मेशन करते आना चाहिए फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर. सो बेसिकली मैं फर्स्ट सेगमेंट में यही डिस्कस करने वाला हूँ दैट हाउ वी विल राइट द वैल्यू ऑफ वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और वाइस वर्सा. तो सेगमेंट नंबर 2 की स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं. तो स्टार्टिंग में जो पार्ट नंबर 1 में पिकअप कर रहा हूँ, दैट इज वी विल राइट all the trigonometric ratios in terms of sin theta. ठीक है, तो मैं सेगमेंट नंबर 1 यहाँ बोर्ड पर लिख के आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि what we are trying to do. सेगमेंट नंबर 1 which we are starting is based on segment number 1 within this part. That segment number 1 is write or express all other trigonometric ratios in terms of part number A I am taking as sin theta, part number 2 I am taking as cos theta, part number C I am taking as tan theta. तो पहले तो इन 3 डोमेन्स पे बात कर लेते हैं कि हाउ वी विल राइट वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन, फिर कॉस, फिर टैन. तो बेसिकली जब आप टेबल को देखोगे जो मैंने अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले किया था थोड़ी देर पहले, तो उस टेबल के पहले 3 कॉलम्स या पहले 3 रोज की हम बात कर रहे हैं. फर्स्ट 3 रोज उसको मैं डिराइव करके बता दे रहा हूँ या इवेल्युएट या प्रूव करके. ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 आई एम स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ साइन थीटा. तो हाउ टू बिगिन विद दिस प्रॉब्लम, हाउ टू स्टार्ट दिस प्रॉब्लम. इट इज़ अ वेरी ईजी सेगमेंट. स्टार्टिंग में जब शुरुआत करोगे तब कैसे, वाई, बिकॉज वी नो दैट साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ईजिली पहले पॉइंट पर या पहले स्टेप में what we will be able to write that cosec theta can be written as 1 by sin theta. तो 1 by sin theta लिखने का मतलब क्या है कि cosec theta को we have written in terms of sin. जो राइट हैंड साइड वाली एंटिटी में है उसमें कंप्लीटली हमको क्या दिखाई दे रहा है, sin theta. Now आफ्टर दैट जब ये पहला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, नाउ लिसन वेरी केयरफुली, मैं आपको लाइन ऑफ एक्शन बता रहा हूँ हाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड इन दिस प्रॉब्लम. जैसे हमारा पहला सेगमेंट खत्म हो जाएगा, राइटिंग द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ द गिवन रेशियो. इस साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कोजेक, तो मैंने कोजेक की वैल्यू लिख दी. देन वी विल फोकस ऑन दैट आइडेंटिटी जहां पर कोजेक अवेलेबल है. तो कौन सी आइडेंटिटी में कोजेक अवेलेबल है, मेन आइडेंटिटी नंबर 3, दैट वाज कोजेक स्क्वायर थीटा
-1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर लिखने का तरीका क्या है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उस आइडेंटिटी पे फोकस करेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा बेटा? उससे फ़ायदा ये होने वाला है कि जो कोसेक की वैल्यू हमने कैरी आउट कर ली इन टर्म्स ऑफ साइन, उससे हम कॉट की वैल्यू इजीली निकाल पाएंगे। तो पॉइंट नंबर 2 में आई एम स्टार्टिंग विथ दैट we'll be using cot square theta plus 1 is equal to cosec square theta. This was the main identity. So we'll be getting the value of cot square theta as cosec square theta minus 1. अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होगा? cot square theta can also be expressed as 1 by sin square theta minus 1. अच्छा, ये कैसे हो गया? This is because cosec square is nothing but inverse of sin, तो cosec के प्लेस पे 1 by sin आ गया। After that what we are doing is we will take the LCM. cot square theta is equal to 1 minus sin square theta divided by sin square theta. तो वैल्यू तो हमें cot की चाहिए थी, cot square की तो वैल्यू चाहिए नहीं थी। Therefore what we will do is in the next step we will square root both sides. So in the numerator we will get under root of 1 minus sin square theta, and after that in the denominator जो sin square दिख रहा है इसका भी तो square root हो जाएगा। So ultimately the square root of sin square theta will come out to be how much? Sin theta. So this is our result number 2. This is our result number 2 that we have also written cot in terms of sin. राइट साइड में जो दिख रहा है वो पूरे तरीके से किसके टर्म्स में? साइन के टर्म्स में, और अल्टीमेटली लेफ्ट में वैल्यू किसकी है? कॉट। तो कोसेक एंड कॉट कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही कॉट निकल के आता है यू मस्ट फोकस ऑन द इनवर्स ऑफ कॉट। तो इनवर्स ऑफ कॉट क्या है? टैन। प्रीवियस वाले सेगमेंट में आपको मैंने बता रखा है। सो पॉइंट नंबर 3 विल बी बेस्ड ऑन टैन थीटा, दैट वी नो दैट टैन थीटा इज नथिंग बट 1 by cot theta. So this will imply that the value of tan theta will come out to be how much? इसका इनवर्स या इसका रेसिप्रोकल। दैट मीन्स द न्यूमरेटर विल शिफ्ट टू द डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर विल शिफ्ट टू द न्यूमरेटर। थर्ड रिजल्ट भी आ गया भाई, 1 minus साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, सब कुछ हो गया। ठीक है, दिस इज आर सेगमेंट नंबर 3 या रिजल्ट नंबर 3। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 4। तो बच क्या रहा है? कोसेक हो गया, कॉट हो गया, टैन हो गया, वी आर लेफ्ट ओनली विथ सेक एंड कॉस। तो सेक एंड कॉस निकालना कंपैरेटिवली अब बहुत इजी हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट आफ्टर दीज 3 पॉइंट्स जनरली हम लोग इसी आइडेंटिटी नहीं बोलना चाहिए, इसी रिजल्ट का यूज़ करेंगे, दैट टैन थीटा इज नथिंग बट समथिंग नोन एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये करने से क्या फ़ायदा है? ये बिल्कुल फ़ायदा है। कॉस और टैन को हम इंटरचेंज कर देंगे। तो कॉस और टैन को इंटरचेंज करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? द प्रोसेस इज नोन एज ऑल्टरनेंडो। ये मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, दैट वेन एवर वी फ्लिप टू क्वांटिटीज लाइक दिस, कि वो क्रॉस इनटू जैसे फॉर्मेट में दिख रही है कि ये यहाँ से नीचे आ गया, कॉस हैज़ बीन गॉन टू द अपर सेक्शन, तो दिस इज नोन एज ऑल्टरनेंडो। इससे क्या फ़ायदा हुआ? देखो, लिसन वेरी केयरफुली। टैन आ चुका है साइन के टर्म्स पे, कॉट आ चुका है साइन के टर्म्स में, कोसेक आ चुका है साइन के टर्म्स में, कॉस एंड सेक बचा है। तो कॉस में एटलीस्ट एक साइन तो देखने लगा मुझे, दैट वी आर एबल टू राइट कॉस इन टर्म्स ऑफ साइन पार्शियली। अब बच कौन रहा है? टैन थीटा। टैन थीटा की वैल्यू ऊपर से यहाँ पुट कर दो, तो पूरे तरीके से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन थीटा में। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? दिस कॉस थीटा कैन बी रिटन एज साइन डिवाइडेड बाय टैन थीटा का वैल्यू ये है साइन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन एंड साइन विल गेट कैंसिल और ये सबसे ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो सबसे ऊपर न्यूमरेटर में जाने का मीनिंग क्या है? दैट इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी विल बी हैविंग, व्हाट वी विल बी गेटिंग इज कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया फाइनल रिजल्ट। हालांकि आप में से बहुत सारे बच्चे ये ऑब्जेक्शन ले सकते हैं या ये सजेस्ट कर सकते हैं कि सर वी वुड हैव यूज्ड cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन वी वुड हैव शिफ्टेड साइन स्क्वायर टू द राइट हैंड साइड, तो cos स्क्वायर बनता 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो cos कितना बन जाता? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। दैट इज ऑल्सो अनदर वे टू डू इट, बट इस लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट मैंने किया है। यू कैन ऑप्ट दैट पर्टिकुलर स्टेप ऑल्सो। अच्छा, अब क्या बच रहा है? cos वी हैव कंप्लीटेड,
tan we have completed, cosec and cot we have completed, only sec is left now. तो sec के लिए I am writing point number 5. Point number 5 में we know that what is the value of sec? Sec is nothing but the inverse of cos. So this can be written as 1 by sec theta is equal to 1 upon under root of 1 minus sin square theta. So finally we are getting the value of sec theta as how much? Sec theta we are getting as inverse. अच्छा यहाँ पे छोटा सा एरर हो गया. This will remain as it is 1 minus sin square. So the value of sec theta will be 1 upon under root of 1 minus sin square. However ये क्वेश्चन या ये जो सेक्शन में डिस्कस कर रहा हूँ, इसको करने के और भी बेटर या और भी शॉर्टकट मेथड्स आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं. इफ़ अवेलेबल यू कैन ईजिली अप्लाई दैट. कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है कि इसी लाइन ऑफ एक्शन के थ्रू जाना है आपको. ठीक है, चलो सेकंड पार्ट, लेट अस स्टार्ट द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में मैं थोड़ा सा लाइन ऑफ एक्शन चेंज करूंगा डिपेंडिंग ऑन कि किसके टर्म्स में किसको लिखना है. दिस वाज आवर पार्ट नंबर ए. दिस वाज आवर पार्ट नंबर ए. पार्ट नंबर ए मतलब expressing all the ratios in terms of sin theta. Then after that coming to part number B, we are expressing all the ratios in terms of cos theta. चलो स्टार्ट करते हैं. तो पहला सेक्शन मैंने आपको क्या बताया, इनवर्स से स्टार्ट करेंगे. दैट इनवर्स इज मीनिंग दैट cos theta and sec theta are multiplicative inverse of each other. So if these are multiplicative inverse of each other, we can write point number 1 that sec theta can easily be written as 1 by cos of theta. Now point number 2 में फिर मैंने आपको क्या सिखाया था कि जैसे ही इनवर्स निकल जाए तो go to that identity in which that inverse trigonometric ratio is available. तो sec square theta के लिए sec theta के लिए कौन सी आइडेंटिटी हमारे पास अवेलेबल है? That sec square theta is 1 plus tan square. तो वहाँ से डायरेक्टली किसका वैल्यू मिल जाएगा? tan का. तो लेट अस अप्लाई दैट. बिल्कुल इसी के पैरेलल जा रहा है. tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. सो अल्टीमेटली tan स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? वी विल बी एबल टू राइट दैट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. आफ्टर दैट व्हाट वी आर गेटिंग इज tan स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज, sec को कन्वर्ट कर दो किसमें? 1 बाय कॉस में, क्योंकि हमें रिजल्ट तो कॉस के टर्म्स में चाहिए. 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा. देन नेक्स्ट वील कैरी आउट इज tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा. सो अल्टीमेटली व्हाट द रिमेनिंग रिजल्ट इज दैट tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट? कॉस थीटा. स्क्वायर रूटिंग किया तो ऊपर वाला रूट में आ गया एंड नीचे वाला जो स्क्वायर है वो रिमूव होके दिस विल बी आर फाइनल आंसर. सो सेकंड सेगमेंट tan भी कंप्लीट हो गया. तो थर्ड सेगमेंट आपको पता है कॉट निकल आएगा, बिकॉज अल्टीमेटली कॉट इज द इनवर्स ऑफ tan, दैट इज 1 बाय tan. सो दिस विल हेल्प अस इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस. कैसे? जस्ट इसी का उल्टा करना है. उल्टा करना है मतलब कॉस अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा. इसके बाद मैंने आप लोग को tan इज इक्वल टू साइन बाय कॉस के टर्म्स बताया था. यू कैन कैरी ऑन विद दैट स्टेप. लेकिन अभी पॉइंट नंबर 4 में आई एम यूजिंग द मेन आइडेंटिटी नंबर 1 और द फंडामेंटल आइडेंटिटी विच इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1. देखो 3 रिजल्ट्स आ चुके हैं. रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 3. साइन एंड कोजेक बचा है. तो अगर साइन आ गया तो कोजेक निकालना कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है. कॉस स्क्वायर गोज टू द राइट हैंड साइड एंड बिकम्स साइन स्क्वायर is equal to 1 minus cos square theta. So what we are left with? We are left with sin theta is equal to under root of 1 minus cos square theta. ये भी आ गया. And then point number 5. Point number 5 will be based on sin का उल्टा कर देंगे तो that will become 1 by cosec. Right side में under root of 1 minus cos square. But we do not require the value of 1 by cosec. We require the value of cosec. So what we will do is we'll inverse it. So this will become cosec theta is equal to 1 by under root of 1 minus cos square theta. तो ये रहा सेकेंड पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हाउ वी आर एबल टू राइट इन टर्म्स ऑफ कॉस. नाउ क्वेश्चन का लास्ट सेगमेंट पिकअप कर रहा हूं मैं. देखिए
लास्ट सेगमेंट इज बेस्ड ऑन राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। यहाँ पे थोड़ा सा लाइन ऑफ एक्शन में भी चेंज हो सकता है, लेट अस फिगर इट आउट। पार्ट नंबर सी इज बेस्ड ऑन tan थीटा, so part number 3 is based on tan theta. That means we have to write all the trigonometric ratios in terms of tan theta. So ultimately point number 1, we will start with the inverse. Cot theta is 1 by tan theta. अच्छा, आप में से कुछ बच्चे अगर थोड़ा सा सोच के आगे बढ़ना चाहें तो दे कैन पॉज द वीडियो व्हेन आई हैव रिटन सी tan theta ऑन द बोर्ड, और फिर आप पॉज करके इसको ट्राई अप कर सकते हो कि कैसे आगे बढ़ेंगे। फिर उसको कंप्लीट करने के बाद either you can check the result from the table which has been displayed on the screen earlier, and ये जो solution मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ इससे भी आप उसको carry out या figure out कर सकते हो whether it is correct or not. So cot आ गया, then point number 2 में we'll figure out that identity जहाँ पर cot available हो। तो identity number 3 जो part number 1 में use हुई है, that cot square theta plus 1 is equal to cosec square theta. So we'll be having we'll be writing using, भाई identity का इस्तेमाल करें तो we'll be writing using cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. Now what we know that cosec square theta will become 1 plus 1 by tan square theta. Why? Because tan is the inverse of cot, cot के place पे 1 by tan लगा दिया. Then cosec square theta will be tan square theta plus 1 upon tan square theta. ये मैंने LCM ले लिया है, I have taken the LCM. So cosec theta will come out to be how much? This will be under root of 1 plus tan square divided by tan theta. तो 1 plus tan square divided by tan theta लिखने का जो सेंस है वो क्या है? That we have square rooted both side. तो न्यूमरेटर में होल स्क्वायर तो है नहीं, तो रूट लग जाएगा, एंड द डिनोमिनेटर tan square is present, tan square will convert to tan theta. After that, coming to point number 3, तो जैसे हमने कोजेक निकाल लिया तो इट इज़ वेरी easy to evaluate the value of sin theta. Sin theta can be evaluated by, sin theta is nothing but 1 by cosec theta. तो 1 by cosec theta का मीनिंग क्या है कि इस क्वांटिटी का इन्वर्स कर देंगे तो sin theta किस में आ जाएगा? sin theta will come in terms of tan, that is tan theta divided by under root of 1 plus tan square. After this what we are left with, cos बच रहा है एंड sec बच रहा है आई गेस. सो उसको भी कंप्लीट करते हैं फटाफट. पॉइंट नंबर 4, तो वो कैसे होगा? सो फॉर दैट वी विल बी यूजिंग द रिजल्ट विच हैज़ बीन यूज्ड इन पॉइंट नंबर 4 ऑफ पार्ट 1, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कॉस. अभी सर इससे क्या फ़ायदा है? इससे ये फ़ायदा है कि वी कैन अगेन अप्लाई ऑल्टरनेंडो एंड राइट कॉस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड वी कैन शिफ्ट tan ऑन द राइट हैंड साइड. दिस, अब tan की वैल्यू तो साइन की वैल्यू तो पहले ही tan के टर्म्स में यहाँ निकाल चुके हैं, तो लेट अस रिप्लेस दैट क्वांटिटी. तो cos थीटा इज इक्वल टू साइन के प्लेस में वी कैन राइट tan डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर इनटू क्या बच रहा है? एक 1 बाय tan तो पहले से यहाँ पर अवेलेबल है, तो वील अप्लाई दैट ऑल्सो. दिस tan थीटा एंड दिस tan थीटा विल गेट कैंसल्ड, and what we are left with is cos theta is equal to 1 by under root of 1 plus tan square theta. However, I will not forget to mention कि ये मेन आइडेंटिटी नंबर सेकेंड से भी निकाल सकते हैं आप. sec स्क्वायर की वैल्यू अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ tan, तो हम sec स्क्वायर को cos के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे और यार यही रिजल्ट आ जाएगा सेम एज इट इज. अब फाइनली पॉइंट नंबर 5 इज कि अगर cos निकल चुका है तो sec भी आ जाएगा, दैट sec विल बी इक्वल टू 1 बाय, सॉरी नॉट 1 बाय, बट sec इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ cos, तो ये कितना बच गया? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. यस, तो ये 3 सेगमेंट्स मैंने यहाँ पे कवर अप कर दिए, 3 सेक्शंस मैंने आपको बता दिए. अब इन 3 सेक्शंस के बाद जो रिमेनिंग 3 सेक्शंस है वो 3 सेक्शंस आप खुद से ट्राई करोगे. जस्ट इन केस ऑफ एनी क्वेरीज आई एम प्रोवाइडिंग माई व्हाट्सएप नंबर, या जिस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो. तो रिगार्डिंग स्टडीज कोई भी अगर आपको डाउट है किसी भी सेक्शन में, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बट एनी डोमेन ऑफ क्लास 10 स्टार्टिंग फ्रॉम रियल नंबर्स टिल प्रोबेबिलिटी, बीच के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, किसी टॉपिक में किसी प्रॉब्लम में कोई भी डाउट या क्वेरी आपको अवेलेबल हो तो यू कैन टेक्स्ट मी इन व्हाट्सएप, यू कैन कॉल मी एंड इन्फॉर्म मी. तो एज सून एज मेरे लिए पॉसिबल होगा मैं आप लोगों की क्वेरीज को सॉर्ट आउट करूँगा.
So this was segment number 2 or part number 2 of trigonometric identities. Again I am repeating, part number 1 सारे आइडेंटिटीज़ का फॉर्मुलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, पार्ट नंबर 2 ये है. पार्ट नंबर 3 में आई विल पिक अप लेवल 1 एंड लेवल 2 प्रॉब्लम्स. फिर पार्ट नंबर जो 4th है, पार्ट नंबर 4th में वी विल चेक कि जो अपना लेवल 3 प्रॉब्लम्स है अलॉन्ग विद पार्ट नंबर 4th में या पार्ट नंबर 5th में उसको 2 पार्ट में बाइफ्रिकेट करके लेवल 3 प्रॉब्लम्स एंड कंडीशनल प्रॉब्लम्स को मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दूंगा, ताकि आपको उसमें अगर कोई भी डाउट है, कोई भी सेगमेंट आपका वीक है, कहीं किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम जा रही है, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस हैं, थोड़े से डिफिकल्ट हैं, उनको मैं डिस्कस करूंगा. तो यू कैन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन गो थ्रू दोज क्वेश्चंस ओवर एंड ओवर अगेन एंड परफेक्शन उसमें आपका धीरे धीरे आ जाएगा. ठीक है.